Hello students, good morning. You are welcome in the online class. Students, we know you stay your home. In this condition, we provide some study material with the help of online class. We hope you read and learn on their homes. Students, we are studying about synthetic fiber and plastic. In previous class, we studied about some topic of synthetic fiber and plastics. Now, we are learning about use of nylon. Students, different use of nylon. It is used to make different type of clothes. Students, nylon, it used to make different type of clothes, socks, curtains, sleeping bags, parachute, etc. Students, look at here: clothes, robes, socks, curtains, sleeping bag, parachute, and other use of nylons, making toothbrush, bristles, comb, zip, fasteners, and machines part of plastic. So students, so different types, so different use of nylon. In previous class, we studied about today's word nylon, property of nylons. Now today we are learning use of nylons. Nylons are used different type of making clothes, ropes, socks, curtains, sleeping bags, parachute, and other use of nylons, making toothbrush, bristles, comb, zip, fasteners, and machines part. Okay, students. Students, these headings you note your notebooks and learn different type of questions depend on their topics in your exercise. When we ask some questions, if you learn these topics, you give my questions answer. Okay, students. Next study polyester, kinds of synthetic fiber. Students, we can define in previous class, man-made fiber are also known as synthetic fiber. Man-made fiber are also known as synthetic fiber, or artificial fiber are also known as synthetic fiber. Next, polyester. Polyester is another synthetic fiber like nylon. Polyester are also another synthetic fiber like nylon. It is manufactured from petroleum. It is manufactured from petroleum. कारण जो नायलॉन होता है वह पेट्रोलियम से बना होता है. Students, as the name suggested, is polymer of ester. यह पेट्रोलियम से बना होता है, इसलिए इसका नाम जो है पॉलीमर ऑफ एस्टर रखा गया है. जो पॉलिएस्टर है वह क्या है? टेरिलीन है. जो पॉलिएस्टर का एग्जांपल है स्टूडेंट वह क्या है? टेरिलीन. इसे हम अंडरलाइन कर दिए हैं और आप भी इसे नोट कर लेंगे. ये जो पॉपुलर पॉलिएस्टर करें जो टेरिलीन है वह पॉपुलर पॉलिएस्टर है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर है
प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ नायलॉन। करें इसकी भी जो कैरेक्टर्स हैं वह नायलॉन के जैसे हैं। पॉलिस्टर इज वेरी स्ट्रांग इलास्टिक एंड एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। करें जो पॉलिस्टर होता है स्टूडेंट्स, जो पॉलिस्टर क्लॉथ होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। पॉलिस्टर रोप जो होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। यह बहुत कम वाटर को, इट एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। करें ये बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए जल्दी से सड़ते गलते नहीं हैं। जो कॉटन क्लॉथ होते हैं स्टूडेंट्स वह आपके स्किन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कॉटन क्लॉथ तो जो आप शर्ट और बनियान पहनते हैं वो जल्दी से सड़ जाती है और खराब हो जाती है, क्योंकि वह आपके बॉडी के स्वीट को एब्जॉर्ब करती है और वह आपके बॉडी के लिए कंफर्टेबल है। व्हाइल पॉलिस्टर इज नॉट कंफर्टेबल फॉर योर बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, पॉलिस्टर इज वेरी स्ट्रांग इलास्टिक एंड एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। नेक्स्ट point, polyester are easy to wash and dry faster. Students, when it absorb very little water, तो students so he was dry very little time. Student जब यह बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो यह बहुत ही जल्दी से सूख जाएगा, और जो कॉटन क्लॉथ होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वो जल्दी सूखते नहीं। Polyester resists wrinkling and spring back in the shape when creased। Students, ये सिकुड़ता नहीं, और ये सिकुड़ भी जाता है तो पुनः अपनी कंडीशन में आ जाता है। जबकि आप कॉटन के कपड़े को एक बार धुल देते हैं तो वह सिकुड़ जाता है, बिना प्रेस किए आप उसे पहन नहीं सकते। लेकिन ये कपड़े ऐसे हैं कि आप धोने के बाद भी बिना प्रेस किए पहन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ पॉलिस्टर स्टूडेंट्स। डिफरेंट देयर आर मेनी यूज ऑफ पॉलिस्टर स्टूडेंट्स। फर्स्ट, पॉलिस्टर आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स विथ कॉटन और पॉलीकॉट एंड विथ wool, polywool, clothes made from made of the niche fiber are more comfortable। करें स्टूडेंट्स, जब पॉलिस्टर को कॉटन के साथ मिलाकर कपड़े बनाते हैं तो पॉलीकार्ड बनता है, और जब हम पॉलिस्टर को वूल के साथ मिलाकर बनाते हैं तो पॉलीवूल बनता है। ये दोनों तरह के कपड़े जो होते हैं, जो मिक्स करके बनाते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि कॉटन के कपड़े जल्दी से सड़ जाते हैं और फट जाते हैं, लेकिन जब आप पॉलिस्टर के साथ मिलाकर बनाएंगे तो यह कंफर्टेबल भी होगा और ड्यूरेबल भी होगा। ये काफी लंबे समय तक चलता है। ओके स्टूडेंट्स, करें मेड ऑफ प्योर पॉलिस्टर। करें इसके यदि हम प्योर पॉलिस्टर की तुलना करें तो जो मिक्स्ड पॉलिस्टर है वो ज्यादा कंफर्टेबल है। करें PET इज वेरी फेमस टर्म ऑफ पॉलिस्टर। करें जो PET है वह पॉलिस्टर का जो है फेमस टर्म है। PET का जो फुल फॉर्म है वो पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट है, वह PET का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्रेलिक। स्टूडेंट्स, आप नेचुरल फाइबर में इन प्रीवियस क्लास में आप नेचुरल फाइबर में प्लांट एल्डिंग एंड एनिमल एल्डिंग फाइबर के बारे में आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। जैसे एनिमल एल्डिंग पुल है, ठीक उसी तरह से वो नेचुरल है, और ये जो एक्रेलिक है ये आर्टिफिशियल वूल है स्टूडेंट्स। कल हम आपसे जिक्र किए थे स्टूडेंट कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, जब विंटर सीजन आता है तो सारे लोगों को नेचुरल जो वूल है उसके कपड़े नहीं मिल सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स जो नेचुरल वूल है वो बहुत ही कॉस्टली है।
और हमारे देश की जो आबादी है वो सारे लोग एक जैसे इतने पैसे वाले नहीं हैं कि वो सब लोग एक जैसे कपड़े खरीद लें स्टूडेंट्स। तो इसलिए मार्केट में आर्टिफिशियल उल के कपड़े आते हैं। जो आर्टिफिशियल उल का एग्जाम्पल है वो क्या है? एक्रिलिक है। जैसे आप घर में अपने मार्का खादी ग्रामोद्योग से जो कंबल आप खरीदते हैं वो वूल का मिक्स होता है, वो कॉस्टली होता है स्टूडेंट। लेकिन आप मार्केट में जाइए जनरल स्टोर की दुकान से जो आप ब्लैंकेट खरीदते हैं जो चमकता रहता है वो एक्रिलिक का बना होता है। एक्रिलिक जो है वो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल वूल है और उसका कलर चमक बहुत ही अच्छा होता है। जबकि नेचुरल वूल के बारे में हम आपको बताए थे कि जो नेचुरल वूल होता है स्टूडेंट्स, नेचुरल वूल जो होता है वह वाइट, क्रीम, ब्लैक, ब्राउन कलर का होता है। यदि आप दूसरे कलर के कपड़े चाहते हैं तो आपको नहीं मिल पाएगा। मिलेगा उसमें जो डाई लगी रहती है वो ऊपर से कोटेड की जाती है स्टूडेंट्स। ऊपर से जो कोटेड की जाती है वो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे जब आप उसे धुलेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, तो वो भद्दा दिखने लगेगा। लेकिन स्टूडेंट्स जो आर्टिफिशियल वूल एक्रिलिक है, जो मैन मेड एक्रिलिक वूल है, इसमें जो कलर है हम उसके जो यार्न बनाते हैं या जो थ्रेड्स बनाते हैं, थ्रेड्स बनाने से पहले ही हम क्या बनाते हैं? लिक्विड बनाते हैं केमिकल का। तो उस केमिकल में ही हम कलर को मिक्स कर देते हैं स्टूडेंट्स। जब हम केमिकल में ही कलर को मिक्स कर देते हैं तो वह कलर काफी दिनों तक चलता है, यानी हम उसे धुल करके धूप में भी डाल देते हैं तो वो डिस्कलर नहीं होता है। ये फायदे हैं। और जो कलर के कपड़े आपको चाहिए वो कलर के मार्केट में अवेलेबल हैं, ऐसे भी कपड़े और वैसे भी कपड़े स्टूडेंट्स। ओके, एक्रिलिक इज ए man-made fiber which acrylic resembles wool, so it is also known as artificial wool। करें स्टूडेंट्स, जो एक्रिलिक है it seem to be like wool, so it is called artificial wool। करें जो एक्रिलिक है स्टूडेंट्स वह हमको ऊन के जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम ऊन कहते हैं, आर्टिफिशियल ऊन कहते हैं। Wool acrylic is cheaper than natural wool and can be dyed in various color। स्टूडेंट्स जो एक्रिलिक वूल होता है वह नेचुरल वूल से सस्ता होता है। एक्रिलिक वूल जो होता है वो नेचुरल वूल से सस्ता होता है, जो नेचुरल वूल होता है वो कॉस्टली होता है स्टूडेंट्स। एक बात। दूसरी बात, जो नेचुरल वूल होते हैं उसमें बहुत से कलर नहीं होते, हमने आपको बता दिया। उसमें जो कलर होते हैं वो वाइट होता है, ब्लैक होता है और ब्राउन होता है। क्योंकि जिन एनिमल से वूल प्राप्त होता है, जैसे शिप को आपने देखा है या तो ब्लैक होगी या ब्राउन होगी या वाइट होगी। याक से मिलता है, याक क्या है? याक ब्लैक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अंगूरा रैबिट है वो वाइट है, कश्मीर गोट है वो वाइट है। तो इस तरह से जो एनिमल्स हमें मिलता है वो तो कलर हम जान गए, लेकिन जब हम उनको ब्लैक करते हैं, रेड करते हैं, येलो करते हैं तो हम उसके ऊपर आर्टिफिशियल कलर की डाई लगाते हैं। ये जो आर्टिफिशियल कलर की डाई होती है वो काफी दिनों तक टिकती नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, जो नेचुरल में हम कलर करते हैं वो टिकता नहीं, लेकिन जब आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं तो हम केमिकल में ही कलर मिला देते हैं तो वो काफी दिन तक चलता है, यानी बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्रिलिक। स्टूडेंट्स एक्रिलिक फाइबर आर सिमिलर टू दोज ऑफ वूल। तरह जो एक्रिलिक फाइबर है स्टूडेंट्स वह वूल फाइबर के ही जैसा है, जैसा कि वूल फाइबर होता है। एक्रिलिक इज वार्म, सॉफ्ट, लाइट एंड फ्लेक्सिबल। करें जो एक्रिलिक होता है वो वार्म होता है, सॉफ्ट होता है, लाइट होता है और फ्लेक्सिबल होता है स्टूडेंट्स। ये उसकी प्रॉपर्टी है। एक्रिलिक क्या होता है? वार्म होता है, सॉफ्ट होता है, लाइट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्रिलिक इज रेसिस्टेंट टू मॉथ एंड केमिकल। करें जो एक्रिलिक है वह रेसिस्टेंट टू मॉथ एंड केमिकल्स।
नेक्स्ट पॉइंट, acrylic is easy to wash and dry quickly. Students, we tell you after some minutes ago कि artificial fiber absorb much less water. Students, जब ये बहुत कम पानी को वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये आसानी से जल्दी सूख तो जाएंगे। जो नेचुरल फाइबर है वो मोर वाटर एब्जॉर्ब, इट एब्जॉर्ब मोर वाटर, करें जब वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो उसे सूखने में टाइम लगेगा। आर्टिफिशियल क्या है, ये कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो ये जल्दी सूख जाता है। एक्रिलिक इज इजी टू वॉश एंड ड्राई क्विकली, करें क्या आसानी से साफ कर लेते हैं हम और ये जल्दी से सूख जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, यूज ऑफ एक्रिलिक। स्टूडेंट्स, there are different use of acrylic. Acrylic means artificial wool or man-made wool. It is used an alternative for expensive or cashmere clothes. Students, it used alternative for expensive or cashmere clothes. करें इसे हम जो महंगे कश्मीर कपड़े हैं उसकी जगह हम आर्टिफिशियल उल के कपड़े बनाकर यूज करते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम आपको बताएं कि सारे लोगों के पास स्टूडेंट्स इतने पैसे नहीं हैं, सारे लोग नेचुरल उल के कपड़े पहने, इसलिए मार्केट में आर्टिफिशियल उल के कपड़े हैं वो अट्रैक्टिव भी हैं, ड्यूरेबल भी हैं और नेचुरल उल से चीपर भी हैं, तो सारे लोग आसानी से ले लेते हैं ताकि सारे लोग कपड़े पहन सकें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन क्राफ्ट यार्न अवेनिंग बोर्डसेल एंड वेजिटेबल कवर्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल पर्पस सच एज फिल्ट्रेशन मटेरियल्स, reinforcement materials in construction and carpentry. So students, there are different use of acrylic fibers. Now students, we are studying advantage and disadvantage of synthetic fiber. Students, first of all, advantage of synthetic fiber. So there are many advantages of synthetic fiber. First, it absorbs less water compared to natural fiber. Students, जब हम इसकी तुलना कम नेचुरल फाइबर से करते हैं तो नेचुरल फाइबर की तुलना में यह कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लाइक वूल और कॉटन. Next, it is stronger, more elastic and made tough and durable fabrics. Students, it is stronger, elastic and tough and durable fabrics. करें स्टूडेंट्स, ये स्ट्रांग होता है नेचुरल फाइबर की तुलना में. इससे जो कपड़े बनते हैं वो काफ़ी समय तक चलते हैं. अभी हमने आपको बताया कि संडो बनियान ये कॉटन की बनी होती है और ये सीड को एब्जॉर्ब करती है. लेकिन स्टूडेंट्स, ये बहुत जल्दी सीड को एब्जॉर्ब करते करते ये कपड़े सड़ जाते हैं और कट जाते हैं. जबकि स्टूडेंट्स, ये जो सिंथेटिक फाइबर हैं ये सीड को बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं या नहीं एब्जॉर्ब करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये स्ट्रांग होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं. नेक्स्ट, इट इज कलर रेसिस्ट एंड डू नॉट ब्लीक कलर व्हेन वॉश्ड. स्टूडेंट्स, नेचुरल फाइबर में क्या है कि जब हम कपड़े को धुलते हैं तो धीरे धीरे उसका कलर हल्का हो जाता है और एक समय आता है कि कलर डिस्कलर भी हो जाता है. लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम कितनी भी बार धुलें इसके कपड़े का जो रंग होता है वो हल्का नहीं होता और ये काफ़ी लंबे समय तक वैसे रहता है. नेक्स्ट, इट कैन हैंडल हैवी लोड विदाउट ब्रेकिंग. स्टूडेंट्स, व्हेन वी मेक the rope of nylon, polyester, it is a artificial or synthetic fiber. It can bear heavy load without breaking. करें या बिना टूटे हुए heavy load को भी यह कैरी कर सकता है, ले जा सकता है. यानी students, it is very strong when we compare
the rope of natural fibers with artificial fiber. Okay students, next it is less expensive compared to natural fiber. Students, जब हम इसकी तुलना नेचुरल फाइबर से करते हैं तो यह बहुत ही कम खर्चीला होता है। अभी आपको बताया स्टूडेंट्स कुछ समय पहले जो नेचुरल फाइबर है जैसे वुल, नेचुरल फाइबर में सिल्क, ये सब बहुत कॉस्टली होते हैं स्टूडेंट्स। आम लोगों की पहुंच से दूर होते हैं, सबके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सिल्क के कपड़े पहने या प्योर उल के कपड़े विंटर सीजन में पहने। ठीक है, तो जो ये आर्टिफिशियल उल, एक्रिलिक या आर्टिफिशियल नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये जो कपड़े हैं स्टूडेंट्स, इसकी सहायता से सारे लोगों को जो कपड़े हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स पॉइंट्स है डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल फाइबर। अब स्टूडेंट्स ये तो इसके अच्छाइयाँ, एडवांटेज थे, बेनिफिट थे। अब डिसएडवांटेज क्या? इट कैच फायर इजीली एंड इजीली इन्फ्लेमेबल। स्टूडेंट्स, इट कैच फायर इजीली। स्टूडेंट्स, जो कॉटन कपड़े होते हैं वो जल्दी आग नहीं पकड़ते, लेकिन यदि ये सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं ये बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं। तो इट कैच फायर इजीली एंड इजीली इन्फ्लेमेबल। अब तीव्र ज्वलनशील है, बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, जल भी जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इट मेल्ट ऑन हीटिंग एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन बियरिंग इट। कर रहे हैं, जब आप ज्यादा आंच लगती है स्टूडेंट, ये कपड़े जानते हैं आप केमिकल्स के बने हैं, प्लास्टिक है, नायलॉन है, ये मेल्ट होकर के उस पर्सन के शरीर में चिपक जाते हैं जो व्यक्ति पहना है। तो स्टूडेंट आप वैसे भी जल जाएंगे। कॉटन के कपड़े क्या हैं, वो एक बार हीट लग भी जाती है वो मेल्ट नहीं होते, जिससे आपके शरीर में चिपकते नहीं और आप जलते नहीं होंगे स्टूडेंट। इट केसेस सेवर बर्न इंजरी। करें जो कपड़े सिंथेटिक फाइबर के हैं, इसकी वजह से बहुत सी ऐसी इंजरी हुई है कि कपड़े खाना बनाते समय कपड़े पकड़ लिया और कपड़े से वो महिला जो है जल गई। तो इस तरह के तमाम किस्से आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में बस इतना ही। वी मीट नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।